Okay, let's start, guys. First of all, hello everyone. Good evening. I'm Rohit, and I will be your tutor, trainer, or friend throughout this journey. First, before moving ahead, please tell me, is my voice is audible to you? Are you hearing Yeah, any disturbance or noise? No, no, it's audible, yeah. Hi, clear. Rohit. It's audible. No Okay, thank you, disturbance. guys. Yeah. So I'm having a total 6+ year experience, hands-on experience on Salesforce Marketing Cloud across various industries and projects. Okay, I have worked on extensively, work on Journey Builder, Automation Studio, MS Studio, and real-time personalization. Okay, I'm here to help you to become a confident and capable in using this powerful platform. Actually, okay, and frankly speaking, this will be an interactive and practical learning experience. Okay, at any point you feel like you have any doubts or your question, please feel free to us. Okay, either you can raise your hands or you can write down your question. Okay, when I will ask to you, you can ask your question at that time. Okay. Yes, Okay. Okay. sure. Yeah. Okay, thanks, guys. So if you are, if you don't know anything about the Marketing Cloud, if you have some glimpse about Marketing Cloud, okay, that's okay. Again, I will tell you what it's, why the Salesforce Marketing Cloud is powerful. Okay, what exactly its usage, where which organization using this, everything. Okay, so Salesforce Marketing Cloud is a, we can say that it's a powerful digital marketing platform. Okay, it's not only the digital marketing platform that's traditional digital marketing platform. Okay, but it's a marketing automation platform. Okay, it designed to help a business plan or personalize or and optimize the customer journey throughout the multiple channels. Like we do have multiple channels, right? Channels like email, mobile, social, web, or ads. Okay, especially strong in marketing automation and customer data integration and personalized messaging. Salesforce Marketing Cloud help us. Okay, so uh, if you don't know, then I will tell you, this is the Salesforce Marketing Cloud is the number one marketing automation tool. Okay, number one platform where Salesforce is a company, also Salesforce is the platform we have. Okay, in CRM also it's a number one, and in marketing automation also it's a number one platform. Okay, so why this is the number one? So there are too many reasons. It provides the deep personalization, it provides the AIs, we can do cross channel campaigns, we can get the customer 360 customer view like CDP with the CDP integrations and all. It's have scalability suitable for small and medium businesses to large enterprise businesses. Okay, we can do automation, we can do journeys there, we can do analytics and ROI tracking here. So there are many benefits or features we have, and make it as a number one marketing automation tool. So let me share my screen first. I will show you how many companies are using this Marketing Cloud tool. So we'll search for Salesforce success story. So in salesforce.com only you will get everything, every details. Let's scroll down, select the product, Marketing Cloud. So here you can see that, okay, Bits is using this. Royal Enfield is also using the Marketing Cloud to send their marketing emails, messages to their customers and boost their revenue. TVS Motor also using this. Then Bajaj Finance, Mahindra and Mahindra, okay, Leica Mobile, Value First, IDFC, okay, it's a financial one. They are also using this Marketing Cloud. There are so many companies are using this Marketing Cloud. Okay, so let's jump into the practical session instead of this theory. This class will focus more on practical instead of theory. Okay, and before moving ahead, I just wanted to confirm, you guys are uh, like you are comfortable with Hindi, English, right? Hindi plus English. Uh, Yes, English. comfortable. Yeah, yes, Rohit. We are comfortable for it both. Hindi, Okay, English. okay, so let's start. So first question you will get it like, how to access the Marketing Cloud. Okay, so there is a one universal URL.
Okay, that's called as mc.exacttarget.com. ओके, ये जो यूआरएल होती है वो यूनिवर्सल यूआरएल होती है, ठीक है, जिससे आप अपना मार्केटिंग क्लाउड, कोई भी मार्केटिंग क्लाउड एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। यही एक यूआरएल होती है जिससे आप मार्केटिंग क्लाउड एक्सेस कर सकते हो. देयर इज नो एनी अदर यूआरएल अवेलेबल. ओके, देन नाउ यू विल हैव क्वेश्चन लाइक ये एग्जैक्ट टारगेट डॉट कॉम क्या है यहाँ पे, ठीक है. इट्स अ सेल्सफोर्स प्रोडक्ट, बट फिर भी यहाँ पे एग्जैक्ट टारगेट क्यों है? तो एग्जैक्ट टारगेट एक जो कंपनी थी जिन्होंने ये मार्केटिंग क्लाउड बनाया था, ठीक है. देन एट 2014 में सेल्सफोर्स ने इसको एक्वायर कर लिया, ठीक है. बट स्टिल दिस प्रोडक्ट रिसाइड ऑन exacttarget.com, इसलिए इसका यूआरएल भी हमें देखने को मिलता है कि MC इट्स नॉट नथिंग बट द मार्केटिंग क्लाउड exacttarget.com, ठीक है. और if you have any knowledge about the CRM, Salesforce CRM, so you will know that कि जो Salesforce CRM का जो एक्सेस होता है, ऑर्ग एक्सेस, you will easily get that access, ठीक है. आपको बस गूगल पे जाना पड़ता है उसके लिए, like Salesforce डेवलपर अकाउंट, ठीक है. यहाँ से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो. यू विल गेट द 30 डेज का अकाउंट मिल जाता है, ठीक है. क्रिएट करने पे लॉगिन भी होता है, क्रिएट भी यहाँ से कर सकते हो, फ्री ट्रायल ऑप्स. तो आपको 30 डेज का अकाउंट तो मिल जाता है. बट सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड का कहीं पे भी आपको अकाउंट इजिली नहीं मिलता, ठीक है. दैट्स वाई इट हैज लाइक इसको इतना पॉपुलैरिटी है, ठीक है. इसलिए इसकी डिमांड ज्यादा है कि मेनी पीपल डजंट नो अबाउट दिस प्रोडक्ट, और इसका इजीली अवेलेबल नहीं है एक्सेस. दैट्स वाई लोगों को इसके ऊपर हैंड्स ऑन नहीं है. सो इन अवर क्लास, इन अवर ट्रेनिंग, यू विल गेट द 3 months of access so that you can do the hands on practice and get the more confident. Okay, कॉन्फिडेंस इन दैट. सो यहाँ से आपको 30 डेज का मिल जाता है. बट सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड में कहीं पे भी आप क्रिएट नहीं कर सकते खुद का अकाउंट, ठीक है. सो दिस इज द URL mc.exacttarget.com. यहाँ पे आके आपको अपना यूजर नेम इंटर करना होता है. सो जैसे आई विल ऐड दिस rohit@volage.in. Yeah. Hi, Rohit. हेलो. If you don't mind, can you speak in English? I didn't understand Hindi. Okay, I will try because there are many people's. Okay, no worry, I will try. Yeah. Thank you. Okay, so then add your password here. Then it will ask you about the verification. Okay, at the very beginning, if you are new user, you need to register the authentication. Okay, there is a one tool, okay, one application called Salesforce Authenticator. Okay, Salesforce Authenticator, it's easily available on Google Play Store and iOS application also. Okay, from where you can download that and you can register your account, and it will help you to authenticate yourself. Okay, देन देखो, जब भी आप लॉग इन करते हो उसमें, ठीक है, मार्केटिंग क्लाउड में, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस, ठीक है. नाउ वेरी फर्स्ट थिंग इज कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, दे विल लॉग इन इनटू द इनकॉग्निटो मोड, ठीक है. तो इनकॉग्निटो मोड में लॉग इन करने के बाद, ठीक है, हियर यू विल सी वन आइकन, ठीक है. ये आई का आइकन दिख रहा है आपको? यस, दिख रहा है. ठीक है. सो मेनी पीपल्स फॉरगेट अबाउट टू क्लिक ऑन दिस, ठीक है. इससे होता क्या है कि मेनी स्टूडियोज एंड बिल्डर विल नॉट अलाउड टू यूज, ठीक है. आपको उसका एक्सेस नहीं होता कभी कभी. लेट मी शो यू. sometimes you will get blank screen or lock screen. so जब भी आप यूज करोगे दिस क्रोम ब्राउजर, ठीक है, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ मैसेज हियर, ठीक है. सो जब भी आप कोई भी इनकॉग्निटो मोड में लॉग इन करोगे, सो फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू गिव द एक्सेप्ट द कुकीज, थर्ड पार्टी कुकीज, ठीक है. देन ओनली you will get full access to this marketing cloud account. Okay, Okay. yeah. Then let me refresh this page.
So once you land into the marketing cloud, you will get this type of UI. Okay, here you will see at the left side we have the studios, in the middle we have the builders. Okay, so marketing cloud is nothing but the combination of studios and builders. Okay, it's nothing but the studios and builders. Okay, it's a combination of studios and builder, where we have the different studios where you can create the content. We have the builders where you can automate the processes, you can send the like emails, messages, WhatsApp and everything. Okay, and we have some additional tool also like Einstein. App Exchange is nothing but the Play Store. Okay, so we'll talk about this one by one. But once you land into this, you will see this type of UI. Here you will see the journey templates. So journey templates is nothing but the predefined structure created by the Salesforce. Okay, it's a ready to use templates they have given. Whenever once we will learn about this journey builder, we'll see this. Okay, now Yes. let's scroll a little bit. Here you will see the calendar. So calendar is nothing but the, let me change the video so you will get more understanding about it. Okay, so calendar is nothing but the, here you can see uh, which email we are going to send on what date. Okay, or what emails we already sent on what date. So here you can get that details. Like if you see that here, today we send the patient registration email, promotional email. Okay, tomorrow also there will be a promotional email will get sent. Okay, if you scroll down a little bit, here you will get the left side area like Salesforce Trailblazer community. I will recommend everything to create your account on Trailblazer Trailhead Academy, um, where you can explore many things about the Salesforce and this marketing cloud also. Okay, here in the middle part you will get the Salesforce marketing cloud blogs. Whatever the blogs they posted on their platform, from here also you can easily access those blogs. And here you will get the Einstein Learning Center. Okay, you can click on here and you will land into that help page from where you can learn about the Einstein. Okay, if you scroll down a little bit, at the left side you will get the recent send emails details. Okay, here you can see which email we have sent on what date, what's the delivery rate for that, how much click rate we got. Okay, what was the total count. Okay, for how many subscriber we sent the email, what was the open rate we got. Every detail you will get here also. Okay, some a small Okay. amount of tracking you can get here. Then also at the right side you will get all the recently edited contents in the content builder. Okay, like what's the email actually edited by whom. Okay, so here you can see that car mileage is the email name edited on 5525 by this user. Okay, now if you scroll down little bit, here also you will get the information about the recently run automations and their status. Okay, when this last run, what's the status about it, it's a get completed or it's still in running state. Okay, when it will run next time. Okay, that detail you will get here as well. Similar like emails and automation, you will get the information about the recently edited journeys. Okay, when and which journey got edited, that detail you can see here, and status about that journey. Okay, so these are all details you can see once you log in the marketing cloud. Okay, once you log Okay. in the marketing cloud. Okay. Okay, now let's talk about one by one about the studios and builders. Okay, so first is the email studio. So under the email studio, everything you can do about the email only. Okay, as the name indicates, email studio is all about email, where you can create the content. Okay, content about the email like images, buttons,
okay, free forms. We have different type of content blocks that you can create separately. Also, you can use them in the email, okay, and then you can send. Okay, you can manage your subscriber, you can create your data models. Data model is nothing but the where you will store your information about your subscriber, okay, and information about the subscriber. Okay. Okay, so everything you can see inside this email studio. Okay, you can automate the email as well. You can do the test send, you can schedule the email, okay, everything you can do, but everything about the email you can do under this email studio only. Okay, then we have the mobile studio as well. Inside this mobile studio we can send, okay, we can communicate with our subscribers, okay, our contacts on different channels. Okay, in mobile studio also SMC support the three types of channels. Okay, one is mobile connect is nothing but the SMS. You can send the text messages on mobile. Okay, it can be bi-directional also, or it can be a one-way communication as well. Okay, mobile push is nothing but the push notification. The best example of push notification is if you have Zomato or Blinkit application installed in your mobile. Okay, so आपने देखा होगा कि आपको रोज नोटिफिकेशन आता है. It is also come with the personalized message कि hey Rohit, we are missing you, you left this Yes, in yes. your cart, right? So they Mm. send this type of personalized notification to grab your attention. ठीक है, क्योंकि उनका काम ये कि अगर आप अट्रैक्ट हो जाते हो, ठीक है, so you will open that push notification or you will open that email, जिससे क्या होगा, indirectly you will buy something on that application, right? तो जिससे उनका रेवेन्यू बढ़ेगा. दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस एवरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, राइट? जो भी ये करते हैं कि आपको ईमेल भेजते हैं या फिर मैसेज भेजते हैं या फिर व्हाट्सएप पे आपको टारगेट करते हैं या पुश नोटिफिकेशन भेजते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल होता है कि ग्रैब योर अटेंशन एंड मेक यू परचेस, राइट? जो भी उनके प्रोडक्ट्स है वो आप परचेस करो, इसके लिए वो सब कुछ करते हैं, राइट? सो देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजी दे फॉलोज टू डू दिस. सो मोबाइल ग्रुप कनेक्ट, मोबाइल कनेक्ट होता है टेक्स्ट मैसेज के लिए, मोबाइल पुश होता है पुश नोटिफिकेशन के लिए. थर्ड वी हैव द ग्रुप कनेक्ट. ओके, ग्रुप कनेक्ट इज नथिंग बट द लाइन एप्लीकेशन. नाउ I don't know how many people know about these applications. So there is a application called Line, जो इंडिया में भी पहले बहुत यूज होता था. ठीक है, this is the logo of Line application. So with the help of this group connect, you are able to send messages, okay, send messaging on your line channel. ठीक है, अगर आपका कोई लाइन चैनल एप्लीकेशन, लाइन चैनल होता है, उसके ऊपर अगर आपको मैसेजेस सेंड करने हैं यूजिंग द मार्केटिंग क्लाउड, यू इफ यू वांट टू ऑटोमेट दिस, ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रुप कनेक्ट यू कैन डू दैट. ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ ग्रुप कनेक्ट हम It is फेसबुक like similar मैसेंजर, to WhatsApp. It is similar to WhatsApp for the line. yeah, it's a social media application actually. Line is like a social media application. It's similar kind of WhatsApp. Oh, okay. WhatsApp, Telegram जैसे ही होता है, Yeah, where you got can it. send the messages. But with the help of this group connect, you are able to send message, not one by one personal messages, but message to your channel. लाइन पे ना एक चैनल करके होता है, जैसे हमारे पास ग्रुप्स होते हैं ना. अभी Okay. व्हाट्सएप पे क्या हुआ है, चैनल्स करके कुछ तो आया है. ठीक है, चैनल्स में हम Got सिर्फ सब्सक्राइब करते हैं या ज्वाइन हो जाते हैं. ठीक है, वहां से सिर्फ एडमिन ही Mhm. मैसेज भेजता है. वैसे ही हम उस लाइन एप्लीकेशन के चैनल पे मैसेज सेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रुप कनेक्ट. ठीक है, ऑल्सो विद द ग्रुप कनेक्ट यू आर एबल टू सेंड मैसेज ऑन योर फेसबुक मैसेंजर. ठीक है, अगर आपको वहां पे पेज होता है, सो विद द हेल्प ऑफ एपीआईज एंड एवरीथिंग यू कैन कनेक्ट फेसबुक विद द ग्रुप कनेक्ट एंड यू आर एबल टू सेंड द मैसेज ऑन योर फेसबुक मैसेंजर एज वेल. ठीक है, Okay. बट उसके लिए भी अलग प्रोसेस होता है, बट डायरेक्टली प्रोसेस हमारे पास सिर्फ लाइन के लिए है. ठीक है, देन वी हैव द एडवर्टाइजिंग स्टूडियो. ठीक है, इसको एडवर्टाइजिंग स्टूडियो भी बोलते हैं, एडवर्टाइजिंग ऑडियंसेस भी बोलते हैं. ठीक है, इट्स योर चॉइस, क्योंकि सेल्सफोर्स की एक आदत है, ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट्स का नाम चेंज करते रहता है. ठीक है, पहले इसको एग्जैक्ट टारगेट कहते थे, फिर सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड कहा गया, फिर सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड
अकाउंट एंगेजमेंट कहा गया. सो देर आर मल्टीपल नेम्स फॉर द सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड सो. ठीक है. सो आपको आदत होगी आगे जाके कि सेल्सफोर्स उसके प्रोडक्ट के कैसे नाम चेंज करते जाता है. ठीक है. सो एडवर्टाइजमेंट स्टूडियो से होता क्या है. सो एडवर्टाइजिंग स्टूडियो में आप क्या कर सकते हो. देर आर मल्टीपल एड प्लेटफॉर्म्स राइट. हमारे पास गूगल है, लिंक्डइन है, स्नैपचैट है, राइट, ट्विटर है. सो अगर आप Instagram, Facebook, somewhere, yeah, they can. फेसबुक, राइट. सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स. लाइक अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, आपको अगर एडवर्टाइजमेंट करनी हो तो आप क्या करोगे. सो यू विल गो टू द सेपरेट सेपरेट प्लेटफॉर्म और वहां से एड रन करोगे. ठीक है, राइट. Yeah. बट यही लाइक इसी को ओवरकम करने के लिए सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड में क्या करते हैं. वी कैन ऐड योर अकाउंट इन दिस एडवर्टाइजमेंट अकाउंट. ठीक है. और एडवर्टाइजमेंट ऑडियंसेस में यू कैन लिंक योर ऑल द सेल्स लाइक ऑल द एड अकाउंट्स. ठीक है. एंड वंस यू वेरीफाई देम, ओके, आपको क्या करना पड़ता है उसको लिंक करने के लिए. यू विल गो क्लिक ऑन द आइकन. वहां पे अलग अलग आइकन्स होते हैं. लेट मी शो यू हाउ. तो इस तरह के आइकन होते हैं. लाइक फेसबुक, यू कैन ऐड लाइक फेसबुक, गूगल, ट्विटर, लिंक्डइन. ठीक है. Pinterest. पिंटरेस्ट एंड स्नैपचैट. तो सिंपली यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस आइकॉन, जो भी अकाउंट आपको ऐड करना है. ठीक है. क्लिक ऑन दैट. देन क्रेडेंशियल्स ऐड करने हैं एंड देन वेरीफाई करना है, ऑथराइज करना है. वंस यू ऑथराइज, ऑल योर अकाउंट विल गेट डिस्प्ले हियर. ठीक है. सो इससे बेनिफिट क्या होता है एडवर्टाइजमेंट स्टूडियो से. सो ऑन वन क्लिक यू आर एबल टू एडवर्टाइज. ठीक है. You are able to advertise on this multiple platform instead of going to this separately. Okay, separate platform. From this platform only you are able to do advertisement. ठीक है. सो यही इस एडवर्टाइजमेंट स्टूडियो का काम है. ओके. अर्लियर हियर वाज देयर वाज वन एप्लीकेशन also that's called as a social studio. ठीक है. जो कि अब रिटायर हो चुका है. उसका काम क्या था कि जैसे एडवर्टाइजमेंट स्टूडियो वर्क होता है कि आप क्या कर सकते हो. फ्रॉम SFMC ओनली ऑन डिफरेंट डिफरेंट एड प्लेटफॉर्म यू कैन रन दैट. सो वैसे ही from single platform like from marketing cloud only you are able to post your content on different social media platform. ये उसका काम था. Now it's retired. ठीक है. So Yeah, in Rohit, future might be. here, Yes. social studio and advertising studio are the same, both one, or Sorry. advertising studio and social studio are the same? No, both are the different things. Different, okay. Yeah, advertisement studio is used to advertise your content. ठीक है. We can My run the advertise. okay. Okay. But social studio, yeah. How often this has been used, ad studio? क्योंकि मुझे पता है इसके काफी सारे limitations है. हाँ, Ad इसके बहुत studio सारे लिमिटेशन है एंड इट्स अ कॉस्टली एक्चुअली. लाइक हाँ, it's ठीक है. not even if we don't think about cost also, like how, because it doesn't come with the all clouds, right? Whatever it is, like in SFMC, I think if there are different studios, this doesn't come as a part of that package, right? Basic package. हाँ Ad हाँ. studio for the यस, separate. वी नीड टू परचेस. ओके. यहाँ पे Exactly. जो मार्केटिंग क्लाउड होता है इसमें बहुत सारा हमें परचेस करना पड़ता है. ठीक है. हाँ, नाउ exactly. इफ योर बिजनेस, इफ योर स्मॉल बिजनेस, you will not purchase the mobile studio first. ठीक है. You only have the email. You Yeah. only have the email, so you will only purchase the email studio. Okay. हाँ, If you want to automate the process, you will purchase the automation studio, right? There are three types of like variants available for Salesforce Marketing Cloud. Let's jump into that. Okay, marketing engagement is nothing but the Salesforce Marketing Cloud. ये याद रखना. ठीक है. तो इसके 3 editions होते हैं. First one is a professional, second one is a corporate, and third one is a enterprise edition. ठीक है. Professional में you will get like very limited. ठीक है. Email marketing, content creation, and that's it only. ठीक है. In corporate edition you will get some AI insights like Einstein, some journey builders and everything. ठीक है.
बट प्रोफेशनल में आपको सिर्फ मिलेगा ईमेल स्टूडियो, नाउ सेंड करने के लिए ऑटोमेशन स्टूडियो मिलेगा, ठीक है। वेरी लिमिटेड एक्सेस यू विल हैव विद द प्रोफेशनल टूल। एंड एंटरप्राइज इज लाइक यू कैन कस्टमाइज, ठीक है, कि आपको क्या क्या चाहिए। उसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपको क्या क्या स्टूडियोज एंड क्या क्या बिल्डर्स चाहिए एज पर योर रिक्वायरमेंट। Okay. ओके, Got it. But definitely, whatever big customers, if you will be working with, they will always go for either corporate or enterprise, not the yeah, yeah. Professional is like for the small medium businesses, SMB. exactly small scale. Yeah, Yeah, yeah. small scale industries. It just what I was talking about is the ad studio. So this is especially deal with the paid ads, right? Yes, yes, Definitely paid for all the ads. social, exactly, because I was I had worked a lot on social studio earlier. I was SME there, but unfortunately that platform got decommissioned. Yes, And I that's have that. seen for that time social studio you are not able to set any budget actually for the paid ads. Now here with this actually you can set up a budget with paid ads, but again I think there is, I don't know, because with time I did not really use this platform on regular basis, which is ad studio, but I remember there was a certain budget you need to set up for each campaign, even if you want to set up a campaign actually from SFMC. So Yes, I don't yes. know, maybe we will touch base those all the studios and builders in detail later in later sessions. It just I was talking about this ad studio. I know that because whatever you do, right, for example you are Right. running a Facebook ad which is on your native application, which is Facebook itself. But if you're connecting that, so what would be the use? You will be just connecting that with the multi-channel approach, right? Your email, then your paid ads, and then SMS. So everything in the journey together. That could be the use case for this. Yes, yes, yes. With the like, we also have some activities that you can use in the journey builder where you can do the multi-channel marketing. Okay, Correct, you can correct. Yeah, multi-channel I think marketing. I would like to see the multiple use cases, because I know we can do that from the native application. What if they want to do it everything together? But again, we have to make sure that Ad Studio is actually also been purchased, and then how efficiently we can use it. I don't know over the time if that they have changed a lot in Ad Studio, if there are more features they have introduced. So maybe I would like to know later, so in later sessions. Sure, sure. Thanks, thanks. Yeah, sure. So why it's not used by many organizations? The first is the cost. Okay, so cost wise is very high, it's expensive. Why? Because if you want to do the advertisement on Google or Facebook, okay, if you do the separately on market, on Facebook or Google, they will charge for you. But if you go with the Salesforce Marketing Cloud, you need to pay to the Salesforce itself. Also, you need to pay for the Google and to the Facebook also. So that's why it's a costlier, okay, than traditional one. So from advertisement studio, you are able to do the advertising on different platforms, okay, as we talk like LinkedIn, Twitter, Facebook, Google, okay. Also, you are able to, not only you are able to advertise, and then the main use case of this advertising studio is like let's suppose we have the subscribers, okay, we have all the data about the subscriber like email address, phone number, everything. You are targeting them on different channel. You are targeting them on email, okay, email channel, SMS, push notification, WhatsApp, okay. But somehow let's suppose uh, subscriber is not interacting with your emails, so you can try them on social media, okay. So just like there are features called lookalike audiences and exact audiences, with the help of that features, you can target, okay, you can target your subscriber on these different channels where you can show your where you can nurture them, okay, where you can interact on this different platform. This is the main use case I know about this advertisement studio. Instead I of think create, the only advantage of targeting your customers via this ad studio or paid ads could be that you don't really require a subscribe obtain actually for
customers. Right. Like for emails, you need that opt-in from every customer before. You don't have a consent, then you can't send email to that person. But for social media, paid ads or anything, so you don't really need to, you don't need any consent from Consent, them. yeah. It's based That on their behavior. We can show the रोहित, advertisement. Yes. my question is, ये जो advertising जो option है Mm-hmm. in the marketing clouds, so if I want to promote my product on Facebook platform, right? So उसके लिए मुझे मेरा Facebook Ads Manager marketing cloud को लिंक करना पड़ेगा, ऐसा कुछ फीचर Yes, है? yes. हाँ, देखो जैसे मैंने बताया कि there are option, okay, from where you can link your advertisement platform. Let me show you. तो यहाँ पे Facebook है, राइट? तो यहाँ पे आप क्लिक करते ही एक पॉपअप आएगा, ठीक है, जहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड आपको ऐड करना पड़ता है, एंड यू नीड टू ऑथराइज कि आप ऑथराइज यूजर हो, आपको वेरीफाई करना पड़ता है वो सारी चीजें. सो देन ओनली यू आर एबल टू डू द एडवर्टाइजमेंट ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो भी आपके वो एड प्लेटफॉर्म है. तो मेरा सवाल यही है कि जो नया टैब ओपन होगा वो Facebook Ads Manager में होगा, बिकॉज इन Facebook Ad Manager देयर आर मल्टीपल एडवांस ऑप्शन. ओके, तो वही ऑप्शंस मुझे यहाँ पे शो होंगे या यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल एड हम प्रमोट कर no, सकते हैं? I don't think so. जो भी native में दिखेगा Facebook में itself, you won't be able to see that many options in SFMC. This is actually Yeah, the exactly. Both are different channels. लिमिटेड Yeah. होता है, ठीक है, हाँ, बेसिकली यहाँ पे लिमिटेड आपको ऑप्शंस मिलेंगे, very नॉट basic. Yeah. एवरीथिंग. नहीं. इसका I think only advantage would be you can combine with other channels, like multi-channel approach you can set up here. That's the unified view of your journey actually for that specific customer that you can design. But if you want to go in detail about the paid ads, definitely the native application is the best approach where you can set up your campaign and Yeah, launch right. and set up a budget like that. Exactly. Rohit, Yes. Okay. Rohit, can I ask something? Sorry. Hello. Yes, Rohit. Akash here. Yes, Akash. I know that some people are aware of this technology and the solution being too advanced. So, would you please start with basics? So, we are getting confused actually. नो एक्चुअली सही है. इस अभी इन्होंने ज़्यादा एडवांस टॉपिक छेड़े है, बट यस वी आर ओनली ना गोइंग विद द बेसिक्स टुडे. ठीक है, हम लोग वेरी बेसिक देख रहे हैं, हम सिर्फ जानकारी ले रहे हैं आज कि कौन सा स्टूडियो है, कौन सा बिल्डर से हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट्स द कैपेबिलिटी ऑफ Salesforce मार्केटिंग क्लाउड. इससे ज़्यादा हम आज कुछ भी नहीं देख रहे हैं. सो डोंट गेट कंफ्यूज. ओके, जहाँ पे भी Yes, आपको yes, लगता है wait, कि sorry. आप कंफ्यूज हो रहे हो, रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चंस. ओके, Sure. जहाँ कहीं पे भी आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ भी डाउट आपको लगता है, सो प्लीज फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस. Hi Rohit, स्टेज इज ओपन Deepak फॉर यू. here. हाय दीपक. रोहित, एक्चुअली मुझे ये जानना है कि एक जो रोड मैप है, हम उस रोड मैप के बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेंगे कि हम कैसे रोड मैप के थ्रू जाने वाले हैं. जो हमारा 2 मंथ का जो रोड मैप होगा, इसमें कितने वीक में हम कहाँ क्या स्टार्ट कर रहे हैं, फिर क्या, और इसके लिए हमको मतलब क्या स्किल की क्या जरूरत होगी. जैसे कि मुझे लगता है इसमें सिक्वल चाहिए और IMP स्क्रिप्ट, मतलब ऐसे टाइप से, मतलब कैसी तैयारी करनी होगी और क्या, मतलब ये भी चीजें जाननी है. मतलब एक्चुअली not aware about like SFMC. This is my first lecture I am attending. यस यस दीपक, वो हम लोग देखने वाले हैं. एट द लास्ट आई विल टेल यू कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ने वाले हैं. इस 2 महीने हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या Yeah, आपको करना है. ठीक है, सो लेट्स sure. वेट फॉर दैट टर्न, विल डिस्कस. ठीक है. Okay, sure. Okay, I hope you guys are clear with the email studio, mobile studio and advertisement studio. ठीक है. Yes. Then we have the web studio. So web studio is like, यहाँ पे आप small website जैसे create कर सकते हो. Web studio के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है बेसिकली क्लाउड पेजेस का. क्लाउड पेजेस इज लाइक अ सिंपल पेजेस. ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपको थर्ड पार्टी, लेट सपोज आपको क्या करना है, कुछ डेटा मार्केटिंग क्लाउड के अंदर ही मार्केटिंग क्लाउड के अंदर ही आप क्या कर सकते हो, क्लाउड पेजेस को होस्ट कर सकते हो. इट्स लाइक अ स्मॉल वेबसाइट, simple website you can host inside the marketing cloud, and that can use to get the data directly into your marketing cloud. and उस data के साथ you can target the
those user into the via email channel, or via, if they have given the mobile number, so you can target them on mobile connect, mobile push, और व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। सो क्लाउड पेजेस इज नथिंग बट द, आप एक स्मॉल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो या फिर स्मॉल स्मॉल पेजेस क्रिएट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ होस्टिंग ऑन थर्ड पार्टी वेबसाइट, ठीक है। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन थर्ड पार्टी वेबसाइट, आप डायरेक्टली वो पेजेस मार्केटिंग क्लाउड में ही क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एक सिंपल अगर सेंटेंस यही हो सकता है तो वेब स्टूडियो का, ठीक है। देन वी हैव द पर्सनलाइजेशन। अब फ्रैंकली स्पीकिंग द पर्सनलाइजेशन वेरी वास्ट टॉपिक, ठीक है। तो ये हम नहीं देखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अगर पर्सनलाइजेशन ही देखने जाए तो इसको ही कम से कम 203 महीने लगते हैं, ठीक है। ये एक अलग प्रोडक्ट था, ठीक है, एवर एंगेज करके, जो मार्केटिंग सेल्सफोर्स ने परचेस कर लिया है और उसे इंटीग्रेट कर दिया है मार्केटिंग क्लाउड के अंदर ही। अर्लियर इट वाज डिफरेंट प्रोडक्ट, एक अलग हुआ करता था, ठीक है। नाउ इट्स कम अंडर द मार्केटिंग क्लाउड ओनली, ठीक है। इसको हम इंटरेक्शन स्टूडियो भी बोलते हैं, इसको हम एवर एंगेज भी बोलते हैं, इसको पर्सनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। सो यू शुड हैव सम बेसिक अबाउट द पर्सनलाइजेशन। तो उसके लिए बता दो, तो पर्सनलाइजेशन इज नथिंग बट द, इससे हम क्या कर सकते हैं कि यू कैन ट्रैक एवरी स्मॉल डिटेल ऑफ योर सब्सक्राइबर, ठीक है। अब उसको ट्रैक कर सकते हो आपके मोबाइल डिवाइसेस पे, ठीक है। यू कैन ट्रैक देम ऑन योर वेबसाइट आल्सो, on based on their behavior, okay, based on their interaction with your website or with your emails, with your mobile application, you can personalize the content, you can show the personalized content to them, just like एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, लेट्स सपोज आपने कभी ये देखा भी होगा, ओके, लाइक जब भी आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है, लेट्स सपोज आपने क्या किया, किसी एक प्रोडक्ट पे कई बार व्यू किया है, वही प्रोडक्ट आप ब्राउज कर रहे हो बार 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 बार, एंड आपने देखा होगा विद इन अ सेकेंड, और जब आप कुछ एप्लीकेशन के मेन पेज पे आ जाते हो, तब यू विल गेट उसी पेज, उसी प्रोडक्ट का है ना, आपको वहाँ पे ऑफर मिल जाती है या फिर कई बार कूपन दिखाया जाता है कि आप उस प्रोडक्ट को खरीद लो, ठीक है। इट्स कॉल्ड द पर्सनलाइजेशन, इट्स बेस्ड ऑन योर बिहेवियर। आपने वेबसाइट ने क्या किया, आपको रिकमेंड किए चीजें, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ यूज केस वी कैन डू विद द पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन से जैसे मैंने बोला, इट विल ट्रैक योर एवरी स्मॉल डिटेल, इट विल ट्रैक योर एवरी स्मॉल एंगेजमेंट, ठीक है। इसी के लिए वो यूज हुआ था। इसमें बहुत कुछ है, ठीक है, वेब एसडीके, मोबाइल एसडीके, बहुत कुछ है। इट्स अ वास्ट टॉपिक, तो ये हम नहीं देखने वाले, बट यू कैन रीड अबाउट इट, ठीक है, अगर आपको लगता है कि इट विल हेल्पफुल, क्योंकि ये एक अदर टूल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर कोई आपको ये पूछेगा ही, बिकॉज कोर पार्ट इज लाइक ईमेल स्टूडियो, मोबाइल स्टूडियो, एडवर्टाइजमेंट स्टूडियो भी एक अलग है, ठीक है। वेब स्टूडियो, देन एनालिटिक्स बिल्डर, जर्नी बिल्डर, कंटेंट बिल्डर, ऑडियंस बिल्डर, एंड आइंस्टाइन, these are the core part of Salesforce Marketing Cloud। अगर आपने सिर्फ ईमेल स्टूडियो, जर्नी बिल्डर एंड ऑडियंस बिल्डर भी सीख लिया, सो यू विल बी रेडी टू क्रैक इन इंटरव्यू, ठीक है। सो आपको यही फोकस करना है जब भी हम क्लास लेंगे, ठीक है। जो भी हम क्लास में लेंगे, आपको ध्यान रखना है कि वॉट एवर आई विल गिव यू द असाइनमेंट्स और सजेशन, यू नीड टू वर्क ऑन दैट, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट इज एनालिटिक्स बिल्डर। सो सिंपल एग्जांपल इज लाइक, मान लो कि आपने क्या किया है, ईमेल सेंड कर दिए, ठीक है। यू हैव सेंड द ईमेल टू योर सब्सक्राइबर्स, लाइक मिलियंस ऑफ ईमेल्स आपने सेंड कर दिए। नाउ बिजनेस इज कम टू यू एंड आस्क यू लाइक कि हमने जो ईमेल सेंड किए थे, ठीक है, उसमें से कितने ईमेल्स डिलीवर हो चुके हैं, कितने ईमेल्स बाउंस हो चुके हैं। हमने अगर 1 लाख ईमेल सेंड किए थे, तो कितने परसेंट लोगों ने ईमेल को ओपन किया है, कितने परसेंट लोगों ने उस पे ऊपर क्लिक किया है, ठीक है। तो ये जो सारी डिटेल्स है, हमें कहाँ से मिलती है, यू कैन रिट्राइव दिस डिटेल फ्रॉम द एनालिटिक्स बिल्डर। एनालिटिक्स बिल्डर में भी हमारे पास 2 तरह के रिपोर्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द इंटेलिजेंस रिपोर्ट एंड सेकंड वन इज द रिपोर्ट्स। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इज लाइक इट्स कम विद सम एआई कैपेबिलिटीज, ठीक है। हियर यू विल गेट सम डैशबोर्ड एंड एवरीथिंग, ठीक है। एंड रिपोर्ट्स में यू कैन गो, देर आर प्लेंटी ऑफ कैटेगरीज अवेलेबल, लाइक अगर ईमेल के है तो ईमेल स्टूडियो के रिपोर्ट्स होते हैं, मोबाइल स्टूडियो के रिपोर्ट्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है, जर्नी के रिपोर्ट्स होते हैं, आइंस्टाइन के रिपोर्ट होते हैं। तो यू कैन गो देयर एंड वहां से आप क्या कर सकते हो, टाइम रेंज दे सकते हो, जो जो भी ईमेल का आपको ट्रैकिंग डिटेल्स चाहिए,
ठीक है. So basically from here you will get the tracking about your communication, about your campaigns. ठीक है. So यहाँ से डायरेक्टली आप फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो, उसको ऑटोमेट कर सकते हो. You can get your file downloaded on your system, or you can send them on your website like email. Okay. Else हमारे पास FTP भी होता है. So what is FTP, how to access it, how to use it, हम लोग बाद में देखेंगे. ठीक है. Then main part is, सबसे मेन पार्ट होता है मार्केटिंग क्लाउड में ऑटोमेशन स्टूडियो एंड जर्नी बिल्डर. ठीक है. यहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना है. फ्रैंकली स्पीकिंग, हम जब भी मार्केटिंग क्लाउड पढ़ेंगे आगे जाके, ईमेल स्टूडियो, जर्नी बिल्डर में आपको ऑटोमेशन स्टूडियो एंड जर्नी बिल्डर पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, उसकी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है. ठीक है. क्योंकि 80 to 90% क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस ऑटोमेशन स्टूडियो, जर्नी बिल्डर, ईमेल स्टूडियो. ठीक है. देन ऑटोमेशन Yes. स्टूडियो लाइक, लेट्स टेक अ एग्जांपल. आपकी ड्यूटी होती है फ्रॉम 8 AM to 6 PM. ठीक है. नाउ यू गॉट वन टास्क. आपके बॉस ने आपको कहा कि मुझे क्या करना है, लैक्स ऑफ सब्सक्राइबर को ईमेल सेंड करना है. ठीक है. लैक्स ऑफ सब्सक्राइबर को ईमेल सेंड करना है. सो व्हाट यू विल डू, आप वन बाय वन तो सेंड नहीं करते बैठेगे. एंड उनका ये भी कंसर्न था कि आपको क्या करना है, ईमेल सेंड जो करने हैं वो रात के 8 बजे करने हैं. ठीक है. 8 PM को सेंड करना है. सो व्हाट यू विल डू, आपका जो वर्क टाइम है आप स्ट्रेच करोगे? नो, राइट. सो ऑटोमेशन स्टूडियो विल हेल्प यू टू ऑटोमेट द प्रोसेस. जो भी आपकी प्रोसेस होती है, ठीक है, एज अ नेम इंडिकेट, इट विल हेल्प यू टू ऑटोमेट योर प्रोसेस. लाइक आपको ईमेल सेंड करने हैं, आपको SMS सेंड करने हैं, आपको डेटा एक्सट्रैक्शन करना है, डेटा मैनिपुलेशन करना है, वो सारी चीजों के लिए ज्यादातर ऑटोमेशन स्टूडियो यूज होता है, वेयर मैनुअल इंटरप्शन कुछ भी नहीं होता. ठीक है. यू कैन अवॉइड मैनुअल इंटरप्शन. यहाँ पे सारी चीजें ऑटोमेट की जाती है. ठीक है. ऑटोमेशन स्टूडियो में वहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है अलग अलग, इंपोर्ट, एक्सट्रैक्ट, देन कन्वर्ट, सेंड, वेट एक्टिविटीज बहुत सारे होते हैं. वी विल सी इन डिटेल्स जब भी ये टॉपिक आएगा. ठीक है. देन वी हैव जर्नी बिल्डर. जर्नी बिल्डर इज लाइक, इट विल हेल्प यू. ठीक है. जर्नी बिल्डर क्या होता है एक्चुअल में, कि यू कैन इंटरेक्ट विद योर कस्टमर इन ए टू वे कम्युनिकेशन. ठीक है. जर्नी बिल्डर से हम लोग टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं. ऑल्सो द बेनिफिट इज लाइक, यू कैन, जो आपका सब्सक्राइबर होता है, ठीक है, उसको आप एक जर्नी में सेट करके आपका ब्रांड की जो भी जर्नी होती है उसके साथ आपको उसे लेके चले जा सकते हो. ठीक है. you can send the multi-channel journey, multi-step journey, like from journey also what you can do, आप उसको multi channels पे target कर सकते हो. like ईमेल सेंड कर सकते हो उसको एक ही इसमें. ठीक है. एक ही इसमें आप ईमेल सेंड कर सकते हो, SMS सेंड कर सकते हो. जस्ट लाइक अगर उसने कुछ ईमेल पे रिप्लाई किया है, फिर ईमेल पे क्लिक किया है, तो बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन, ठीक है, with the email, you can send the message also. Based on their interaction with the SMS or push, you can send them the WhatsApp message also. अगर WhatsApp पे कुछ रिप्लाई आता है तो उसी रिप्लाई के साथ आप कोई उसको रिस्पॉन्स दे सकते हो. So this type of two-way communication you can do with the journey builder. Then we have this behavioral trigger. ठीक है. बहुत इसमें ये यूज होता है मेनली. behavioral trigger it's come with majorly 3 parts. ठीक है. 3 तरह के ट्रिगर्स होते हैं इसमें. It's come with the abundant cart, abundant browse and abundant wish list. ठीक है. It's an Einstein AI capabilities है. ठीक है. Let me, अभी हमारे पास इसके लिए बहुत सारी कोडिंग वगैरह करनी पड़ती है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है हमारे वेबसाइट के साथ. ठीक है. बट यू शुड हैव सम नॉलेज अबाउट दिस. तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस की abundant cart and abundant browse. एनीवन नो अबाउट दिस abundant cart या फिर abundant browse के बारे में कि क्या होता है इसमें? Yes. Okay. Abundant cart is actually, for example, I'm interested in one of the product, and I'm in that process wherein I'm about to buy that product. I put it in the cart, and then all of a sudden I realize that maybe let me go for some other options, maybe some other brands actually. So I just put it in the cart, but I did not go for the process wherein I did not buy that product actually. So Yeah. that way you can actually
keep reminding the customer that your product is, you're about to buy a product. Do you still want to buy? Like maybe some 3 or 4 reminders you can send it to the customer so that the customer can buy that product. राइट. सो अबंडेंट कार्ट इज लाइक, जैसे ने बोला कि यू लाइक सम वन प्रोडक्ट, ठीक है, तो आपने क्या किया, उसे कार्ट में ऐड कर दिया. बट बिफोर मेकिंग द चेकआउट और बिफोर मेकिंग द पेमेंट क्या हुआ, लाइक आपको कुछ काम आ गया या फिर कुछ डिस्टर्बेंस आ गया, तो आपने वो परचेस नहीं किया. सो दैट मीन्स आपका क्या हुआ, कार्ट अबंडेंट हो गया. ठीक है, आपने क्या किया, पेमेंट नहीं किया ना चेकआउट किया. इस प्रोसेस को बोलते हैं अबंडेंट. ठीक है. सो एट दैट टाइम what you can do, you can remind your customer or you can send some incentive, ठीक है, to attract your customer to buy the product. ठीक है. आपने कभी ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब भी आप कुछ कार्ट में ऐड करते हो, सो यू विल गेट सम ईमेल्स या फिर टेक्स्ट मैसेजेस या फिर व्हाट्सएप भी आता है, फ्रॉम अमेजोन से आता है, जोमेटो से आता है, ब्लिंकिट से आता है कि हे रोहित, यू मिस दिस प्रोडक्ट, ओके, दिस प्रोडक्ट इज वेटिंग इन योर कार्ट, you should buy this product, ऐसे करके आपने देखा होगा, राइट. सो दिस इज नथिंग बट द abundant cart. abundant browse is nothing but the कि कोई आप प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा, ठीक है, आपने उस प्रोडक्ट पे व्यू किया एंड आप उस प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप उसके इमेजेस देख रहे हो, यू आर चेकिंग द रिव्यूज, ठीक है, यू आर चेकिंग द डिस्क्रिप्शन एंड एवरीथिंग. ऑलमोस्ट अपने फास्ट 5 से 10 मिनट उसके ऊपर ही स्पेंड किए, बट स्टिल यू हैवंट एडेड टू द कार्ट और आपने अभी तक उसको बाय नहीं किया. सो आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि आफ्टर सम टाइम आपको ईमेल आता है या फिर एसएमएस आता है कि हे रोहित, आई गेस यू आर लाइकिंग दिस प्रोडक्ट, ठीक है, आपको ये प्रोडक्ट बाय करना चाहिए, ये आपके लिए ही बना है. ऐसे आपने कभी ईमेल्स या फिर मैसेज देखे होंगे, राइट. सो दिस इज अबाउट द अबंडेंट ब्राउज. और ऐसे ही विश लिस्ट के बारे में होता है कि जो भी चीजें हमारे विश लिस्ट में हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, सो इट विल कीप रिमाइंडिंग यू कि ये प्रोडक्ट आपके विश लिस्ट में है, ये अभी अवेलेबल भी है, सो यू शुड बाय दिस प्रोडक्ट. इसे हम कहते हैं बिहेवियरल ट्रिगर्स. तो ये जो बिहेवियरल ट्रिगर्स जो होते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, देयर आर सम प्लेंटी ऑफ कोड, ओके, देयर आर सम आईजीओ कोड्स, कलेक्ट कोड्स, वी कॉल्ड इट एज अ, ठीक है, जो कि हमें ऐड करना पड़ता है हमारे वेबसाइट पे. एंड देन वेबसाइट हमें क्या करेगा, जो भी हमारा यूजर्स होता है, सब्सक्राइबर होता है, उसकी डिटेल्स, जो भी उसका बिहेवियर होता है विद द वेबसाइट, वो क्या कार्ट में ऐड कर रहा है, क्या बाय कर रहा है, ठीक है, कार्ट से क्या रिमूव कर रहा है, क्या सर्च कर रहा है, कितने टाइम कौन से प्रोडक्ट पे वो स्पेंड कर रहा है, वो सारी डिटेल्स को क्या करता है, एसएफएमसी को सेंड करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दैट स्क्रिप्ट. वो एक जावा स्क्रिप्ट होती है, ठीक है. देन वी हैव द कंटेंट बिल्डर, ठीक है. सो कंटेंट बिल्डर इज नथिंग बट द वेयर यू कैन एक्चुअली क्रिएट योर कंटेंट, ठीक है. सो नाउ लेट मी शो यू वन थिंग. इन ईमेल स्टूडियो ऑल्सो वी हैव द कंटेंट बिल्डर, ठीक है. ईमेल स्टूडियो के अंदर ही हमारे पास एक कंटेंट बिल्डर होता है और ये भी हमारा कंटेंट बिल्डर है. सो वी कैन कॉल्ड इट एज अ ग्लोबल कंटेंट बिल्डर, ठीक है. नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस कंटेंट बिल्डर एंड दिस ग्लोबल कंटेंट बिल्डर फ्रॉम ईमेल स्टूडियो एंड दिस कंटेंट बिल्डर. आपको देखो यहाँ पे सब सेम मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे फोल्डर्स है, ठीक है, यहाँ पे वही कंटेंट है. But what's the different actually? Difference is nothing but the inside the email studio content builder, you are able to create content only for the email channel, ठीक है. But in the global content builder, you are able to create content for every channel. जैसे हमने बोला कि मार्केटिंग क्लाउड में कौन कौन से चैनल सपोर्ट करते हैं, हमारे पास है ईमेल, राइट, एसएमएस, टेक्स्ट मैसेज है, मोबाइल पुश है, ग्रुप कनेक्ट है, व्हाट्सएप है. तो इन सारे चैनल के कंटेंट आप कंटेंट बिल्डर से क्रिएट कर सकते हो. नाउ लेट्स चेक द डिफरेंस हियर. अगर मैं क्रिएट पे जाता हूँ, यहाँ मुझे ईमेल मैसेजेस, ईमेल टेम्पलेट, कंटेंट ब्लॉक्स अपलोड है. बट इफ आई गो टू द कंटेंट बिल्डर, ग्लोबल कंटेंट बिल्डर, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं. ईमेल मैसेजेस, एसएमएस, मोबाइल एप्लीकेशन पे पुश नोटिफिकेशन, इन ऐप, लाइन, अगर मेरे पास व्हाट्सएप होता तो व्हाट्सएप, ठीक है. सो इस तरह से ये डिफरेंशिएट किया गया है. कंटेंट बिल्डर में आप क्या कर सकते हो, आप मल्टी चैनल, जो अलग अलग चैनल से उसके कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है. देन वी हैव द ऑडियंस बिल्डर. ऑडियंस बिल्डर में आपको मिलता है कॉन्टैक्ट बिल्डर, वेयर यू कैन मैनेज एंड ऑर्गेनाइज योर कॉन्टैक्ट्स, ठीक है. हियर यू कैन
connect your different data sources, just like जो Salesforce CRM होता है, ठीक है, वो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो विद दिस मार्केटिंग क्लाउड। और वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, यू कैन डायरेक्टली retrieve that contact and use it in directly inside the marketing cloud, ठीक है। You can send them the email notifications, WhatsApp and everything from the marketing cloud। ओके, सो जैसे मैंने बोला कि आप कांटेक्ट को मैनेज भी कर सकते हो, आप कांटेक्ट क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के लिए, उनको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही आप हर एक कांटेक्ट का 360 व्यू देख सकते हो। 360 व्यू इज नथिंग लाइक बट कि आप मेरे पास अगर कोई कांटेक्ट है तो उसने कौन कौन से चैनल को सब्सक्राइब किया है, ठीक है, कब सब्सक्राइब किया है, उसका अभी स्टेटस वहां पे क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें हम इस कॉन्टैक्ट बिल्डर से देख सकते हो। लेट मी टेल यू कि हाउ इट विल शो यू 360 व्यू ऑफ योर कॉन्टैक्ट। So if I open one contact, let's this one. So यहाँ से आप उसका email address, if they have mobile number, so you can from here you can check the mobile number, उसका device ID, उसका line ID, ये सब आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। Then we have the Einstein. Einstein is nothing but the AIML capabilities. Okay, Einstein is basically backend में use करता है AIML, ठीक है। इसमें अलग अलग तरह के हमारे पास आइंस्टाइन कैपेबिलिटीज, आइंस्टाइन फीचर है, जस्ट लाइक एंगेजमेंट स्कोरिंग है, सेंड टाइम ऑप्टिमाइजेशन है, फ्रीक्वेंसी है। वन ऑफ द एग्जांपल मैं अभी बता देता हूँ कि सेंड टाइम ऑप्टिमाइजेशन मोस्ट यूज आइंस्टाइन फीचर है ये। तो ये क्या करता है, लेट सपोज दीपक है और रोहित है। दीपक क्या करता है, दीपक की हैबिट है वो डेली 6 PM को ईमेल ओपन करता है। रोहित की हैबिट है कि रोहित डेली 12 PM को ईमेल ओपन करता है, ठीक है। तो ये आइंस्टाइन क्या करता है, इनका जो एवरेज ओपन टाइम है वो कैलकुलेट करके रखता है। नाउ एज अ कस्टमर हम क्या करते हैं, डेली सुबह 8 AM को ईमेल सेंड करते हैं। बट इफ यू यूज दिस आइंस्टाइन STO, सेंड टाइम ऑप्टिमाइजेशन, तो ये क्या करता है बेसिकली, इवन इफ यू आर सेंडिंग ईमेल टू दीपक एंड रोहित एट 8 AM, वो क्या करेंगे, दीपक को 6 PM को ईमेल सेंड करेंगे एंड रोहित को 12 PM को सेंड करेंगे, एंड दैट विल लीड टू द इंक्रीज इन योर ओपन रेट, ठीक है। क्योंकि जब उनका ओपन लाइकआउट टाइम होता है तभी SFMC उनको ईमेल सेंड करता है, ठीक है। देन वी हैव द ऐप एक्सचेंज। ऐप एक्सचेंज इज नथिंग बट द प्ले स्टोर आप कह लो, या फिर हाँ, प्ले स्टोर जैसे होता है हमारे पास, ठीक है, जहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो। वैसे ही सेल्सफोर्स के ना अलग अलग एप्लीकेशन भी होते हैं, ठीक है। यू कैन क्रिएट योर कस्टम एप्लीकेशन एंड यू कैन लिस्ट ऑन दिस ऐप एक्सचेंज, जहाँ से अगर कुछ लिमिटेशंस होते हैं मार्केटिंग क्लाउड के, तो लोग क्या करते हैं, वो एप्लीकेशन बनाते हैं वहाँ पे लिस्ट करते हैं। एंड इफ यू फील कि ये एप्लीकेशन हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है, सो यू कैन बाय दैट एप्लीकेशन एंड यू कैन ऐड इनटू योर सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड एंड यू आर एबल टू यूज इट, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, अगर आपको लगता है कि ऐड करने चाहिए, सो फ्रॉम ऐप एक्सचेंज यू आर एबल टू ऐड इट। जैसे हमारे पास एक क्वेरी स्टूडियो करके है जो हमने ऐड किया है, ठीक है। देन प्लेटफॉर्म इज लाइक इट्स नथिंग बट द पैकेज मैनेजर, इसके अंदर होता है पैकेज मैनेजर इज नथिंग बट द, लेट्स सपोज आपके पास दो अलग अलग एनवायरमेंट है, टेस्ट एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट एनवायरमेंट, ठीक है। तो आपने कोई सॉल्यूशन टेस्ट में किया है, ठीक है, और वही एग्जैक्ट कॉपी आपको अगर डेवलपमेंट में चाहिए, ठीक है, सो यू कैन डायरेक्टली कॉपी पेस्ट दैट विद द हेल्प ऑफ पैकेज मैनेजर, इन सिंपल वे में कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास होती है इन मार्केटिंग क्लाउड। नाउ what other things we are going to learn in this Salesforce marketing cloud? तो Salesforce marketing cloud में एक AMScript एंड एक SHJS, ऐसी दो सर्वर साइड लैंग्वेजेस है जो यूज की जाती है, ठीक है। दैट वी आर गोइंग टू कवर इन योर ट्रेनिंग सेशन। AMScript जो है वो हम लोग इन डेप्थ देखने वाले हैं, बट SHJS विल नॉट कवर एवरीथिंग, उसका बेसिक पार्ट देखेंगे। बिकॉज अगेन SHJS सीखने के लिए हमें कम से कम 1 महीना जाता है, एंड दैट विल बी द ऑनगोइंग प्रोसेस होती है, ठीक है। आप ऐसे सिर्फ उसके यूज कैसे करके नहीं सीख सकते, अगर आपके पास कोई काम आता है तभी उसको आप अच्छी तरह से सीख सकते हो SHJS को। स्टिल वी आर गोइंग टू सी द बेसिक अबाउट दैट SHJS।
ठीक है। देन इट ऑल्सो लाइक हम एसक्यूएल, ठीक है, जो एसक्यूएल होता है वो भी ज्यादातर यूज किया जाता है, तो वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। So after completing this course or training, you are able to work as like a Salesforce Marketing Cloud email specialist या फिर admin, developer, consultant, campaign manager, ठीक है, campaign specialist, ऐसे जॉब रोल को आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। नो, यही था हमारा आज का थोड़ा बहुत बेसिक अबाउट द Salesforce Marketing Cloud। अगर किसी को कुछ डाउट है, so please feel free to ask. Rohit, actually, हम लोग definitely we are covering all the parts of SFMC. In like if I don't know about other people, but if we are actually working on some of the projects with the customers, and then we stuck with the issues, or we want to discuss on any specific use case, would you be able to help Yes, during the session, or maybe a separate help, something, श्योर whatever? श्योर। I don't अगर know. आप कहीं पे, अगर आप Yeah. कहीं पे स्टक हो जाते हो तो देयर विल बी अ ग्रुप, राइट। अब हमारी हम्म, कम्युनिटी होती है तो वहां पे भी आप पोस्ट कर सकते हो अगर किसी को उसके अच्छा बारे में हाँ। सॉल्यूशन आता है, ठीक है। सो दे कैन आल्सो हेल्प यू, एल्स यू कैन डायरेक्टली रीच आउट अवर टीम, दे आर Okay. ready to So help you what all in this. resource access you will be giving? Apart, this is SFMC one. Are you Yes, giving you will access get for the SFMC one? SFMC Maybe. org, right? Then you will get some interview questions, Mm-hmm. yeah, to boost your confidence. Okay. And then community. You have a community एक for this. कम्युनिटी जो हमारी अभी बनेगी, ठीक है, वी ऑल्सो हैव द अदर कम्युनिटी ऑल्सो। Okay. I mean, maybe some and then are we also covering this part? Like whenever you start a project, right? You usually set up an account, overall SFMC setup, wherein you do this. What it called, the uh, sender authentication pack. I mean, initial account setup, account configuration setup, right? You do then IP warming, all these things. You will be covering those parts, यस or यस यस, सारा okay? जो देखो, जितना हाँ, भी बेसिक से एडवांस तक होता है वो सारी चीजें हम लोग इसमें कवर okay. करने वाले हैं। All right, sure. Okay, ऑल द cool. नेसेसरी थिंग्स यू नीड टू बिकम अ सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड डेवलपर, वी हाँ, आर गोइंग टू सी because दिस। usually वो start होता है हमेशा कोई भी, if there is a fresh account or fresh project, so then you set up everything from scratch, right? So हम definitely खुद want. इस अकाउंट में सारा कुछ स्क्रैच से देखने वाले कि कैसे हम लोग Oh, करेंगे, ऐसे perfect. नहीं। यस। Okay, perfect. Rohit, All right. my question is, if my company is using AWS, Amazon Web Services, okay, data के लिए, and I am using SFMC for campaign purpose, okay, तो मुझे अगर AWS से डेटा लेना है Salesforce Marketing Cloud में, so is it possible, because both are यस different यस tools ना, यस यस। तो इसके लिए कुछ API वगैरह करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे? या एपीआई भी होते हैं, देयर आर सम लाइक इनबिल्ट कैपेबिलिटीज भी है सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड के, तो वो हम लोग देखने वाले हैं आगे जाके। Okay. वी हैव दैट एबिलिटी, या। And my second question is, SFMC के जो न्यू अपडेट्स आते हैं तो वो मुझे कहाँ पे शो होंगे? तो एसएफएमसी के न्यू सो लेट अपडेट्स। सो लेट मी टेल यू, जो एसएफएमसी होता है, सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि वाई इट्स नंबर वन, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल है, ठीक है। वी हैव एडोबी, ब्रेज, मोइंगेज, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, बट स्टिल वाई मार्केटिंग क्लाउड, सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड इज नंबर वन। तो सेल्सफोर्स क्या करता है, हर एक क्वार्टर में, हर एक 4 महीने बाद ये एक नए नए रिलीज अपडेट करते रहता है, दैट विल इम्प्रूव एनीथिंग, ठीक है। जो भी अच्छा होता है वो सारा वो इम्प्रूव करते जाता है, ठीक है, टू मेक द बेटर प्रोडक्ट। क्योंकि इफ अगर उन्होंने प्रोडक्ट को बेटर किया तभी वो ज्यादा सेल होगा, तभी ये ज्यादा यूज होगा, इसलिए वो क्या करते हैं, हर एक 4 महीने में एक नए नए अपडेट ऐड करते हैं। सो यू कैन गेट दोज अपडेट ऑन योर सेल्सफोर्स पेज ओनली, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सेल्सफोर्स रिलीज। सो हर एक 4 महीने में यहाँ पे रिलीज मिलते हैं, ठीक है। सो स्प्रिंग, समर एंड विंटर ऐसे हमारे रिलीज होते हैं, तो रिलीज नोट में हमें वहाँ सब देखने मिलता है, हर एक प्रोडक्ट वाइज भी आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। इफ आई सर्च सेल्सफोर्स रिलीज एसएफएमसी, तो एसएफएमसी के देखो मार्केटिंग क्लाउड रिलीज नोट, तो यहाँ पे उसके सारे रिलीजेस हमें पता चलते हैं।
9 बज गए ना, तब तक है ड्यूटी। और किसी को कुछ डाउट है गाइस? हेलो? नो राउत, नो Rohit, it's not from my side. I think what would be the batch timing, Rohit? 8 to 9, same timing, 8 same to time. 9. Okay, Yeah. okay. Okay. We are having a group actually where we will discuss about the various use cases also. Okay. Yeah. So you will be creating a WhatsApp group, or what kind of group it is? We'll create the Skype group actually. Skype. Okay. Yeah. You will get the assignment on your email address. Okay. Your email ID, whatever the email ID you are going to share, on that email ID you will get the assignments. Okay. एंड वन थिंग गाइस, जो भी असाइनमेंट देखो, मैं जब पढ़ाऊंगा, जो भी असाइनमेंट दूंगा, अगर आप वो असाइनमेंट कंप्लीट करते हो, ठीक है, तो इट विल बी बेनिफिशियल टू यू ओनली, इट्स नॉट फॉर द मी। ठीक है, अगर आप वो कंप्लीट करते हो, अगर आप हैंड्स ऑन करते हो, सो यू विल ओनली गेट द कॉन्फिडेंस। ठीक है, जो कॉन्फिडेंस आपको काम आएगा बाय गिविंग द इंटरव्यू, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, क्योंकि अगर आपने खुद ब खुद प्रैक्टिस की हो, हैंड्स ऑन किया हो, तभी आप वो चीजें विजुअलाइज कर सकते हो। इफ यू डोंट, अगर आपने उसके ऊपर कभी काम नहीं किया, ठीक है, यू विल नॉट एबल टू विजुअलाइज इट। अगर विजुअलाइज नहीं होगा तो आपको आंसर देने में दिक्कत आएगी, राइट? तुम पता नहीं ज्यादा Yes. तो आपको ये झालं सारी तर नुसते batches. चीजें का ध्यान देना है। ठीक है, Yes. Yes, Rohit. ओके। और किसी को कुछ डाउट है गाइस? देयर आर मेनी गाइस हियर। किसी को कुछ डाउट, क्वेश्चन? No, Rohit. No. I think you have covered most of the things. It's just that just not want to make sure that everyone gets good at this platform. It's become like kind of the basic from basics to maybe on from art till architect level, something like so. Everyone gets good knowledge on this platform. श्योर सर। अगर देखो, अगर That's the कोई main. न्यू Yeah. न्यू है इस प्लेटफॉर्म के लिए, सो आई कैन एश्योर यू कि अगर उसने जो भी हम बताते हैं, ठीक है, अगर उसने उतना भी किया, 2 महीने क्लास करने के बाद 1 महीना प्रैक्टिस किया, तो आई कैन एश्योर दैट कि ये 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड का दिखा सकता है। Okay. ओके देन गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपके पास कुछ भी डाउट्स हो या कोई क्वेश्चन हो, तो डायरेक्टली यू कैन कनेक्ट मी और वैभव। ठीक है, अगर आपके पास आई गेस वैभव का नंबर होगा, तो आप उनको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, Okay. Sure. ओके गाइस, थैंक यू, Okay, बाय Rohit. बाय, Thanks, हैव Rohit. अ नाइस डे, Thank you. गुड Bye नाइट, bye. बाय। Good night. Thank you. Good night. Bye. Thank you, Rohit. Good night. बाय, थैंक यू। Yeah, thank you, Rohit. Thank you.